السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، پولیس کے معاملات پر غور و فکر کرنے کے لیے چلتے ہیں تھانے. السلام علیکم سر، بڑی دیر بعد بلایا تو سانو، اسی بھی پڑے گئے سر دور پتہ. اچھا یہ بتاؤ کہ ان دو بد نصیبوں کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ سر ملزم نے ایسے کو پڑیا ہے. اور تم کیوں نمائندگی کر رہے ہو؟ تم ترجمان ہو تھانے کے؟ اور سارے ٹرالی والے نے اچھی ٹیپ لاؤندا ہے جناب. ہاں جی، انہیں ٹیپ لائی نہیں، انہیں چنڈیا سے جی. اچھا ایک تو ڈرائیور ہو گیا، دوسرا ڈی سی او ہے جناب، وہ نال ہیلپر ہے دوسرا. اچھا کیا نام ہے تمہارا؟ حنیف جی. اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں. میرا نام جی نیاز ہے. نیاز. ہاں جی. اور یہ تمہارے ساتھ جو ہے یہ ہیلپر ہے؟ یہ میرا دوست ہے، تینوں فلموں کام کرنے کا شوق ہے. اچھا یہ وجہ دے نال میں ٹیپ اچھی لاؤنا تے آ جناب مینوں پھڑ لیا ہے. سر اجازت ہوئے تے خاک سار کوئی عرض کرے؟ جی جی. اللہ دی قسم میں تھے آج بھی ایس ایچ او ہی ہیں. ہاں جی آپ ہیں. یقین کر لو. اچھا آپ اصل میں شریف بہت ہے، حالانکہ آپ نے اپنا تعارف کروایا تھا جاوید ڈنڈا کے طور پہ. یہ کون ہے؟ سارے ٹھیکیدار اے مٹی دیاں ٹرالیاں، ریت دیاں ٹرالیاں، اٹا دیاں ٹرالیاں، اے جنیاں اوور لوڈ ٹرالیاں دیکھ دے انہاں دیاں نے. اچھا کیوں کرتے ہو یہ سب کچھ؟ کیا کرتے ہیں آفتاب صاحب؟ بزنس کرتے ہیں اپنا. آپ نہیں کرتے، ہم نے روکا کبھی آپ کو؟ اچھا جناب، پہلی گزارش تو یہ کہ آپ خلاف ورزی کرتے ہیں پنجاب ساؤنڈ سسٹم ایکٹ 2015. اس سے پہلے یہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ ہوتا تھا، یہ اپنی طرف سے امینڈمنٹ کر کے اس کا نام چینج کر دیا. جیسے ضیاء الحق نے ہر نام عربی میں کر دیا تھا اور کہا کہ جی اسلام نافذ ہو رہا ہے. سر پاسپورٹ پر بھی آ گیا تھا. جی جی، جواز السفر اس کو کہنا شروع کر دیا تھا، اسکول کو مکتب کہنا شروع کر دیا تھا، لاؤڈ سپیکر کو اعلی مکبر الصوت کہنا شروع کر دیا. اپنی ایٹما چھڈو. تو بھائی آپ نے خلاف ورزی کی، لیکن اتنی شرم تو ہونی چاہیے کہ جب پچھلا ہارن دے رہا ہے، جگہ مانگ رہا ہے، تو اس کے لیے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. تانوں پتہ ہے کہ ٹرالی رک جائے تو پورے ہفتے دا ساڈا نقصان کتنا ہے؟ تو پھر کوئی اثر نہیں کرتا یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا ایکٹ ہے، جو قانون ہے. اور سر ساڈی بدقسمتی ڈپٹی چینج ہو گیا، ورنہ اسی ڈپٹی صاحب انہوں دی ٹرالی چلاؤندے سن. یہ بے شرم لوگ ہیں ایسے ڈیپٹیز جو ان جیسوں کی وہ واقعی ٹرالیاں ہی چلاتے ہیں. وہ رزق حرام کماتے ہیں اور یہ زہر اپنے بچوں کے حلق میں اتارتے ہیں اور پھر بڑے تمطراق سے کہتے ہیں جی ہم محافظ ہیں، ہم پولیس سروس. شرم کرو، ڈوب مرو وہ تمام کرپٹ آفیسرز جو اپنے آپ کو پولیس کہتے ہیں. سر بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے سب سے بات کی لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کی آپ نے. یہ تو لگتا ہے ٹرالی تھلے آئی. اچھا جی کیا وجہ، کیا کیوں اتنی اونچی آواز میں چلاتے ہیں؟ اس کے بغیر چین نہیں آتا. سر اصل میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ٹرالیاں ہیں نا، دو چیزوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. ایک میوزک اور دوسری چرس. شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ بات تھانے میں بیٹھ کے کر رہا ہے. نیب نے بڑی مشکل نہ ٹرالیاں پھڑیاں جے. وہ کیسے؟ غلطی نے دو بڑی بلڈوزر پھاڑ لے سن. میں کہ ایڈی بھاری ٹرالی تھی ہوندی ہی نہیں. اچھا ایک اور ضلالت جس کا تذکرہ میں موسٹ پروبیبلی 200 دفعہ کر چکا ہوں، اور وہ ہے یہ جو اوور سٹفڈ توڑی کی بھوسے کی ٹرالیاں ہوتی ہیں. یہ ٹرالیاں بھی تمہاری ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، توڑی والی بھی ہماری ہیں، ریت والی بھی. بڑے بڑے اعلیٰ افسران ہم اجازت دے دیتے ہیں. یہ ٹیرا ماما لگتا ہے. تمیز نہ گل کرو، تمیز نہ. گل تو کی تھی ہن بہ بھی اوتھے تو. سر جی احتیاطاً تسی ایسے سیٹ دے بیٹھے رہو، کسی ٹائم بھی حملہ ہو سکتا ہے. انہوں خالی رہے. یعنی ایس ایچ او ملزم کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہے. اور سر میں ملزم نہیں ہے، میں سفارشی ہوں. یار بات سنو، اگر میری مانو نا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اندر کرو. چل بھائی اٹھ، میرا پتر بڑے صاحب نے کہا اٹھ، چل اندر، چل اندر، چل اندر، چل. اور بات سنو، سر ہوں تھوڑا حکم ہو گیا نا، اگلی گل نہیں کرنی، یہ میرے دل کی گل کی تھی. چل اندر بھائی، چل اندر اینو، چل اندر بننا اینو اندر. اور یہ اور خوش کی تیاری رہا. بکواس بند کر. اس تو اگے کتنے جانا؟ ایس ایچ او صاحب آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور سارے تھے میں تحفظ سے ہیں. ڈیڈی ہاں یہ جوید ڈنڈا صاحب کتنے چلے گئے نہیں؟ ہویا کی ہے؟ اور نیب غلطی نہ تو ایسے جو سامنے اندر سوٹا ہیں. اس نے تو گونگا سے. ڈیڈی ہوئے پانی بوتل. اچھا جی. اوہ بوتل دیتے میں دند کٹ دیا کرتے. اور چھوٹا بوتل تو چکیا خبردار. نیب کی ہے میرا بھی نشہ لاؤنے ہیں. اور جا کے لے کے آؤ ایس ایچ او کو. بھائی سر جو حکم. سوری سر، باہر آؤ سر، آ جاؤ، آؤ نا سر.
गलती हो गई प्लीज बैठो बैठो सर बैठो ਹਨੀਫ ਤੂੰ ਐਡਾ ਐਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀਫ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਤੇ ਖੱਚਰ ਬਾਤ ਸੂ ओए डैडी साहब ने इसने की दाऊंगा तो मुस्तफा बहुत फजूल आदमी है टीरा तमीज नाल अच्छा ये सीट ना मुलजमा वास्ते मुख्तस कर दी है नीफ हाँ जी मैं डैडी मैं जानना डैडी मैं नजर आ रहा तू नीफ तेरी वजह तो बड़े जलील होने हैं यार कोई ऐसी गल नहीं मैं साहब तू माफी मांग ली है ना वो साहब को नहीं माफी मांगी साहब दे जी अंदर ही है हैं मैं क्यों फड़ लिया ओए नहीं दे आँखा खोल के देख ओए मेरी मक्खी बन देती हूँ साहब अंदर ने साहब भी अंदर है ते पानी की बोतल भी अंदर चली गई ये किने दी है बस ओए और कोई थाने च नहीं हैगा और इसको तो तुमने अंदर किया ही नहीं ਇਹ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚਲੋ और मैं इसकी बात कर रहा हूँ उस बेचारे को मार रहे हो ਉੱਠ ਓਏ ਉੱਠ ਅੱਗੇ ਲੱਗ वाह ਅੰਦਰ ਹੋ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ बहुत ज्यादती है SHO साहब ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ आ गल सुनो ए मेरी पहुंच ममनून हुसैन तक ही करा दियो अरे जी ये सच्ची मुच्ची हमजा शबाज का फोन आ गया तो फिर और सर सही कह रहे हैं आजकल हर ऐरा गहरा नथु खैरा हमजा शमाल डायरेक्ट हुआ है ये भी तो हो सकता है कि हम तो उसके साथ खुद डायरेक्ट हो ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲਾਂਦਾ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ सर वैसे हमजा साहब की क्या पॉलिसी है कि हर कोई उनसे डायरेक्ट हो जाता है इसको कहते हैं ओपन डोर्स पॉलिसी ये वन विंडो ऑपरेशन होता है यार कुर्सी दे दो थक गए खलो खलोगे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁਰਸੀ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਏ ਇਧਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਬੈ ਥੱਲੇ ਬੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈ ਲੈ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ यार अल्लाह दी सो सारे ही बड़े बदतमीज ने केड़ा बदतमीज है केड़े के बदतमीज है ਉਹ ਡੈਡੀ ਆ ਬੋਤਲ ਫੜਾ ਮੇਰੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਹੀ ਲਵੋ हाँ जी ਬੋਲੇ ਬਈ अस्सलाम वालेकुम जी ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ मोहतरमा इधर आओ तुसी धन कह रहे ने कौन हो तुसी सारे मालिक मकान ने इन्होंने किराएदार रखे ने ते पुलिस ने रिपोर्ट दी नहीं हैगी इस गल ਨੂੰ 1.5 महीना हो गया आओ बाजी बैठो आओ जी आओ ना तुसी भी सारे फरगंदी साहब ने ये शायर भी ने इंजीनियर भी ने ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਨੇ भाई साहब मालूम काम तुसी हो हाँ जी 1.5 महीने तो तुसी किराएदार रखे ने थाने रिपोर्ट नहीं की थी कैसे तुसी शहरी हो ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ क्या देख रहा था ਚੰਨ गल है वे SHO साहब है कोई मुश्किल काम नहीं पर ਤੁਹਾਡਾ ਭਣਵਈਆ ਬਿਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ जी ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ असल पता गल की हैगी कि इत्थे वारदातां बड़ियां हो रही ने इसलिए जरूरी हुंदा रिपोर्ट करनी ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਠ ਤੇ ਭਣੇਵੇਂ ਭਣੇਵੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੇਲੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲੀ ਬੁੱਢੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਂਦੇ ਆ नहीं वो पनेवी भी ले आने सी वो भी आके मामिया नूं मिल जांदे वैसे सर ये बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर है ऐसे पाकिस्तान में तो रहने को दिल नहीं करता ये बिहेवियर वाकई इंसल्टिंग है लेकिन ये जो एकदम जंप कर जाते हैं ना आप कंक्लूजन्स पर कि जी पाकिस्तान में रहने को दिल नहीं चाहता आपका पाकिस्तान के साथ नाता इतना कमजोर है पिछले दिनों एक खत आया हमें डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का स्कॉटलैंड से आप यहां से MBBS करके इंग्लैंड चले गए स्कॉटलैंड गए स्कॉटलैंड रहे और ये बड़ी अच्छी बात है वो पाकिस्तान के लिए दिल में दर्द रखते हैं ये लोग कि यहां पर लिवर ट्रांसप्लांट का एक बड़ा अस्पताल कायम करने लगे थे लंबी चौड़ी फिजिबिलिटी बनी जमीन पसंद कर ली गई ऑलमोस्ट खरीदो फरोख्त की स्टेज आ गई लेकिन हुआ ये कि एक मर्तबा ठोकर न्याज बेग चौक आ रहे थे पुलिस वालों ने रोका और लिफ्ट मांगी आपने कहा भी मैं जानता नहीं हूं मैं तो यहां के रिहायशी नहीं और हम लोगों के साथ तो हर रोज कोई ना कोई वारदात होती है हमें मना किया जाता है कि आपने ये गैर जरूरी कर्टसी नहीं दिखानी इस पर पुलिस वालों ने खूब गाली गलोच किया बहुत अफसोसनाक शर्मनाक गुफ्तगू की
वो कहते हैं मैं इतना बददिल होकर यहां से वापस चला गया और मैंने अब आइडिया ही शेल्फ कर दिया। 4 अरब रुपए मालियत का मैं प्रोजेक्ट ला रहा था, एनजीओ तैयार थी, मेरी अपनी फंडिंग तैयार थी, लेकिन मैं डॉक्टर अकरम साहब आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं, आपके हॉस्पिटल ना लगाने से कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखिए ये तालीम जिसके बल पर आप स्कॉटलैंड गए और आपने पैसे कमाए और ये एक अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आया, वो आपको पाकिस्तान से मिली, इस मिट्टी से मिली। चुनांचे इस मिट्टी का और मां बाप का जिन्होंने अपना पेट काट के बड़ी मुश्किल के साथ आपको तालीम दी, उनका कर्ज है आपके ऊपर। आप इन पुलिस एहलकारों की थोड़ी सी बकबक नहीं बर्दाश्त कर सके। हमें देखें, हम यहां रहते हैं, हम सुबह से शाम तक पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन क्या हम पागल हैं कि हम यहां रह रहे हैं? हम कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया नहीं रह सकते थे? बड़ा खूबसूरत शेर बार बार मुझे याद आता है इकबाल साजिद का, मतला है कि जहां भुंचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। तो ये कोई कमाल नहीं है कि आप इस तरह की बात सुने और मुल्क से भाग जाए। ये बुज़दिलों का काम है। बहादुर हैं तो फेस करें और तहिया करें कि मैंने ये रवैया चेंज करना है। यकीन कीजिए यही पुलिस आपको बेहतरीन पुलिस नजर आएगी। अभी चंद दिन पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर गया, मैं हैरान रह गया वहां के पुलिस ऑफिसर्स को देखकर। गो के सारी पुलिस ऐसी नहीं होती, लेकिन अगर पुलिस का सरबराह अच्छा है ना तो ओवरऑल बेहतरीन इमेज होता है, और मैं बहुत खूबसूरत इमेज बहावल नगर पुलिस का लेकर आया हूं। मैं क्या हूं सानू का दिया से बुलाया, सानू गल ते दस दियो। बीबी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 6 महीने कैद ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ जुर्माना है। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਏ। मैं क्या सन मेरी गल सुनो प्लीज, सिफारिश कर दियो, मैं बड़ी बिजी रही हूं। हाँ जी, एक मौका दे दें इन्हें। बल्कि अभी ये जो इनका बहनोई है इनके हाथ एक कागज भेज दें, बस लिख के भेज दें कि ये कवायफ है, एंड दैट्स इट। सर दे दो मौका, दी ध्यान है, पहली बार ते आई है। लो भाईजान मैं तन्नू नहीं कागज कर लिया। बाजी इतियातन साडे बहनोई दी कटिंग भी करांदी जाए। आयो जी, खैर ना जा भैन मेरी है। लो जीरा रखा जे। भैन टुर चली। अच्छा ठेकेदार साहब। सर कौन सा ठेकेदार? मैं कंपनी का ओनर हूँ, आप ठेकेदार साहब। हाँ तो ये आपको ठेकेदार क्यों कह रहे हैं? सर ये तो जाहिल है सारे के सारे। वाह जी वाह, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, शर्म नहीं आती आपको इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉलियां स्टफ करते हुए? सर एक चीज मुझे बहुत हैरान करती है कि भूसे की इतनी बड़ी ट्रालियों का लाहौर शहर में क्या काम है? वो कौन सी इंडस्ट्री इसमें खपत हो रही है? मुझे ये यकीन है कि कुछ भूसे के नाम पे आ रहा है आपके शहर में, कोई बईद नहीं, असला आ रहा हो। Who knows? कौन चेक करता है उन्हें? इवन ये जो मिट्टी की ट्रालियां, ये जो रेत की ट्रालियां, आखिर कराची में असला तकसीम किया गया था ना, तो सर एम्बुलेंस में किया गया। और जिस जगह ये सब कुछ हो रहा है, आप यकीन करेंगे कि बॉर्डर उसके कितने करीब है? हार्डली 15 किलोमीटर्स। और शर्म का मकाम है ट्रैफिक पुलिस के लिए कि जिसकी नाक तले ही सब कुछ होता है। अच्छा जी, फैसलाबाद का एक वाकया बड़ा मखौलिया भी है और लर्जा खेज भी, कि एक पराडो गुम होगी और उसे तलाश किया जा रहा था, उसको ट्रैक किया जा रहा है। ट्रैकर बता रहा है कि वो टोल प्लाजा से गुजर रही है, उसे फौरन रोकें। अब पुलिस वहां पर चाको चौबंद मौजूद थी, लेकिन वो कहें जी पराडो तो गुजर गई है। क्या पराडो कहां गुजरी है? हम सब मौजूद हैं, 32 बंदे खड़े हैं इस वक्त, पराडो कैसे गुजर गई? वो पता ये चला कि तूड़ी से भरी, भूसे से भरी एक ट्रॉली गुजरी थी, और आप यकीन कीजिए कि पराडो उसके अंदर स्टफ की हुई थी, उसके अंदर दबाई हुई थी। तो इतना बड़ा जगरनॉट होता है। वैसे एडी बड़ी ट्राली का ड्राइवर भी अमीर मुकाम ही होएगा। और सर पुलिस का हर पासे एहो ही हाल है, की करिए? एसएचओ साहब हर तरफ ये हाल नहीं है। केपी में आकर देखो, हमने पुलिस का किबला दुरुस्त कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है अजीबोगरीब आदमी? ए बतख बनाने वाली डाई है। अच्छा जेड़ा भी आ रहा ना, ਉਹਦਾ ਹਜਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੌਰੋਂ ਆਇਆ। अच्छा, और यार बड़ी मुसीबत बनी पई है। ਸਾਨੂੰ पता लगा कि ट्रालियां दे विच कुछ छुपा के कुछ जराइम पेशा धंधा हो रहा है, को पता होवे? ये तो कुछ भी नहीं है सचो साहब, आप चाहें तो एटम बम भी छुपा सकते हैं हम इन ट्रालियों में। ਆਹੋ ਪਰਾਡੋ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। हर जी इन्नी दिनों आए हो, कोई बंदा अखरोट ही लैंदा है, कोई शहद ही लैंदा है। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਖਰੋਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
पता नहीं राज खेड़दा है। अखरोटों पर मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प कहावत है। आपके इलाके में कहावतों के अलावा और क्या क्या मशहूर है? कगाखुनो मातुल गवाड़े नो गुस पगाखुनो मात का। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ जनाब? अगर दांत तोड़वाना चाहते हो तो अखरोटों को दांतों से तोड़ो। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओए गल सुनो, ओए मैनू बाहर कड्डो, फिर ना कहना कि वही हो गया है। हैं? की मतलब? ओए होए ਉਹ ਬਿਠਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਬੈ। थले बे थले बे ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ओए छेती करो, ओए मैं बड़ा मजबूर हो गया ਉਹ वहां। ਬਿਠਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ। और यार क्या उसने टॉयलेट जाना होगा, उसे जाने दो। ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। सर ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਵੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ, ਕੋਈ ਤਿੱਤਰ? ये तीनों चीजें तुमने जो पूछी हैं चकवाल की मशहूर है, रेवड़ियां भी, तीतर भी और पकौड़े भी। ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋ ਆਪਣੀ? अच्छा बात सुनो, उस बेचारे को जाने दो, टॉयलेट जाने दो, इतनी देर से पूछ रहा है तुम्हें। चल जाए, साहब ने कहता है। ओए बस रहन दो, जो होना सी वो हो गया। ओए यार खुदा दा वास्ता मैनू बाहर कढ दो, मैं किथे फस गया? मेरे प्यो दी तौबा, मैं इस तो बाद इत्थे नहीं जाना। ਸੁਣਿਆ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और बात सुनो, ये जो करोड़ों रुपए तुम इन ट्रालियों से कमाते हो ना, आज पूरे हो गए वैसे। बूटे हाँ जी अपनी ड्यूटी पे है। ओए मुंह ते तां चुक। सरकत तो बाद बंदा मुंह विखान जोगा नहीं रहना। ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਮਨੂਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा एक अर्ज ये खाना थोड़ा परे परे ना कर लीजिए। तो दिनों रात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात आज का गाना हमने फिल्म बहन भाई से लिया है। ए हमीद की नहायत शानदार कंपोजिशन, सैफुद्दीन सैफ के लिरिक्स हैं, गाया अहमद रुश्दी ने। आज आवाज और अदाकारी का जादू जगाएंगे हनी अलबेला। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। मांगे भीख न पाए कोई, खाए छुड़ाए कोई, मांगे भीख न पाए कोई। तेरी क्या मर्जी है दाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। दौलत की सब हेरा फेरी, हाथ है मेरा जेब है तेरी। दौलत की सब हेरा फेरी, हाथ है मेरा जेब है तेरी। कोई किसी का गम नहीं खाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। देख रहा हूँ खेल ये क्या है,
दुख और सुख का मेल ये क्या है, देख रहा हूँ खेल ये क्या है, दुख और सुख का मेल ये क्या है, क्यों फिरता हूँ हंसता गाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, काश कोई मुझको समझाता। सुपर वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। सुभान अल्लाह। और आज सबसे पहले कंगाल, मुफलिस, नादार, गरीब, फकरा, लफ्ज कंगाल नहीं है। मैनू पता से लफ्ज नहीं, कंगाल का मतलब होना उल्टा अमीर। नहीं नहीं, कंगाल का मतलब तो वही है। मैं तलफ्फुज की पहले बात कर रहा हूं कि ये कंगाल गाफ से नहीं है। सर ये काफ से है? ये काफ से है, कंकाल। ठीक ठीक, लफ्ज कंकाल है। देखा सर, मैंने ठीक बुझा ना। मैं बड़ी देर तक तेन वेख रहा, बाज आ जा। अच्छा मायरा विच बैठ के ना डरी डरी रहती कि मेरे ना कुछ होने वाला। ये हिंदी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पिंजर, ढांचा। जी सर। हड्डियां जो गोश्त से आ रही हो उन्हें कंकाल कहते हैं। यानी इसका सर गरीब होने से कोई ताल्लुक नहीं। फिगरेटिवली इस्तेमाल होता है ना, कि इनडायरेक्टली के भी इसके ऊपर तो गोश्त पोस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं। तो ये फुकरा है, ये नादार है, गरीब है। इसी तरह याद रखिए, ढांचा कोई लफ्ज नहीं है। हाँ, ये ट्राली है। नहीं यार, ढांचा नहीं है, ढांच। ढांच एडी जोर दिखे, ढांच उठ के बैठ गया। अब पिंजरा जो है, पिंजरा, हाँ जी, इसका मतलब होता है हड्डियां। पिंजर जो हम पिंजरा कहते हैं ना, जिसमें परिंदा अगर देखें तो वो भी बारीक बारीक तारें, काने, पसलियों की एक शक्ल नजर आती है। हाँ जी, वो भी पिंजर कहलाती है। अब जैसा कहते हैं कि बड़ा खतरनाक सफर था, मेरा इंजर पिंजर हिल गया। जी पिंजर है। और गरीब के लिए लफ्ज मुफलिस भी इस्तेमाल होता है। मुफलिस दरअसल अरबी में गंजे को कहते हैं। ये हमारा मुफलिस है। मिर्जा मुफलिस भी है, गंजा भी और गरीब भी। नहीं तो सर फिर मुफलिस को गरीब क्यों कहते हैं? अब इसमें ये कि हुआ यूं होगा। आया जी, आए तीन बंदे। अब कोई शख्स अपना बिजनेस चौपट करके, तबाह करके रो रहा होगा, दुखी होगा, और फिर वक्त गुजरते गुजरते वो गंजा हो गया होगा। किसी ने कहा होगा इसका तो बुरा हाल है, बिजनेस इसका तबाह हो गया, ये तो मुफलिस हो गया। सर जितने गल हो रही है, दो बंदे जरूर फिर देने के हुआ ये होगा कि जब वो वहां बैठा होगा, ऊपर से एक शख्स ने कहा कि शायद इसने ये किया होगा। अच्छा, तुम्हें पता है मुझे हंसी किस बात पे आ रही है? क्यों जी? तुम्हारी उर्दू पे। तुम मजाक क्रिएट ही ना किया करो, सिर्फ उर्दू बोल दिया करो। ठीक है सर। अच्छा जनाब, फिर है एहतमाम करना, एहतमाम के बंदोबस्त करना, अरेंजमेंट्स करना, जबकि एहतमाम है रोना धोना। अब होता ये कि कोई मर जाए जी, तो मैयत पर आने वाले अफसोस करने वालों के लिए बंदा अच्छे खाने पकवाता है, अच्छा फल रखवाता है, स्वीट डिश बनवाता है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। तो इसको एहतमाम करना कहते थे कि सिर्फ फातिह खानी के लिए जाना है या कोई एहतमाम भी है। इसी से फिर है अहम। अब अहम क्या है? खास। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अहम। जरूरी जी जरूरी। अच्छा जरूरी नहीं था हर गल च बकवास करे। अब अहम का मतलब भी बहुत रोना, बहुत ज्यादा रोना। आज की रोन धोना ले लाया चीजा। आज फरंगे आसफिया दा खत्म तो नहीं। वो कहते कि फलां तो बहुत रोया, लेकिन मरहूम का भाई सबसे अहम था, यानी वो सबसे ज्यादा रो रहा था। सर ये रोदाली क्या है? रोदाली रोदाली वो होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं।
رونے کے لیے بلاتے ہیں، بین کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے. یہ اپنی اپنی روایت ہے، کلچر ہے. اہمیت دینے کے لیے اپنی میت کو. ہمارے ہاں تو اونچی آواز میں رونا اور بین کرنا بہت برا، بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ جب تک روئے نہ سمجھتے ہیں مرنے والے کا حق ہی نہیں ادا ہوا اور آپ کو اس سے محبت ہی نہیں تھی کہ آپ روئے نہیں. تو یہ جو روتے ہیں نا رودالی، یہ آپ کو بھی رونے پر مجبور کر دیتے ہیں اور وہ ایسا ایسا بین کرتے ہیں، ایسی ایسی بات کرتے ہیں. اور مردہ ویکھ رہے ہوں کہ یہ ہے کون. سر مرزا صاحب کو بھی لوگ لے کر جاتے ہیں. اینو رودالی ہستے نہیں، اینو صفائی ہستے لے جاتے. اہم سے ہی مہم نکلا ہے. مہم جیسے میں مہم پہ جا رہا ہوں، آپ مہم پہ جا رہے ہیں رونے دھونے کی محفل میں. بس ایک لفظ کے آگے بہت ساری آف شوٹس ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں. ابھی تو صرف اہم کی بات ہو رہی ہے. جیسے نوابنا بھی ہے. اب سید احمد دہلوی صاحب فرنگ آصفیہ کے مؤلف، وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں میت پر رونا اس کو سانپا کہتے ہیں. سانپا، سیاپا، سانپا، سیاپا ہم نے بنا دیا. وہ اتنا لمبا کام ہے یار، ختم ہی نہیں ہو رہا، کئی کے دن رونا، اس کو سانپے کو سیاپا کر دیا. اچھا جی، ایک لفظ ہے کالم. کالم تو لکھا جاتا ہے. ہاں جی، کالم جو لکھا جاتا ہے. کالم نگار کالم نگار جیسے آپ بھی لکھتے ہیں. کالم نویس. لیکن کالم جو لاطینی زبان کا لفظ ہے، لاطینی زبان میں کالم کہتے ہیں ایک ستون کو. تو پھر اس کا مضمون نویسی، کالم نگاری، اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ سر وہ کالم کی شکل جو اخبار میں اس سے کہا جاتا ہے سر. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کالم اسی طرح کے ایک ٹریک کے اندر لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے. یہ غلط ہے. کالم کا تعلق ستون کے ساتھ ہی ہے. ستون پہ، یہ جو ستون ہوتا ہے اس کے اوپر شاہی فرمان لکھ دیا جاتا تھا کہ آج کی اہم خبر، بادشاہ کا پیغام، بادشاہ کا آرڈر یہ ہے. وہ ایک ستون کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا این شہر کے بیچ. اس کے اوپر لوگ جا کے پڑھ لیتے تھے کہ آج کی خبر کیا ہے، آج کا شاہی فرمان کیا ہے. ملک فارس میں، جس کو ایران کہتے ہیں، وہاں ایک دیوار اس کے لیے مختص کر دی گئی کہ ایک دیوار ہے جس کے اوپر شاہی فرامین لکھے جاتے ہیں. اس کو پھر لوگ پوچھتے کہ آج کی خبر کیا ہے، آج کیا ہوا ہے، تو لوگ کہتے جا کے نوشتہ دیوار پڑھو. تو کالم یہاں سے آیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کالم اور بجلی کا کھمبا، اس کی بھی ایک مماثلت ہے. ہاں، کالم نگار کھمبے سے چاڑ کے لکھ دے. فرینچ میں کالم کو کولمبے کہتے ہیں. کولمبے. اور جب کوئی بیچارہ قسمت کا مارا فرانسیسی یہاں برے صغیر میں آیا، سب کانٹیننٹ میں، اسے کہا ہوگا کہ یہ کولمبا ہے. کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا، اس نے ستون کو کولمبا کہا. لکڑی کا کوئی ایک، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی شہتیر ہوتا ہے، اس کو اس نے کولمبا کہا ہوگا. کولمبا آہستہ آہستہ کھمبا بن گیا. وہ فرانسیسی پاگل سی سر. نہیں، فرانسیسی نہیں، آپ پاگل تھے جنہوں نے کولمبا کو کھمبا کر دیا. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ پرانے زمانے میں بجلی جب نئی آئی تھی تو ابتدائی ستون جو تھے، کھمبے جو تھے، وہ لکڑی کے تھے. سر آج کوئی شعر نہیں ہے؟ شعر ویسے تو میں نے اقبال ساجد کا پہلے سنایا. ایک فرنگ آصفیہ کا اختتام بھی ہم آج اقبال ساجد کے شعر پر ہی کرتے ہیں، اور یہ بھی مطلع ہے ان کا بڑا خوبصورت. وہ کہتے ہیں کہ در قفس جو کھلا آسمان بھول گئے. در قفس جو کھلا آسمان بھول گئے، رہا ہوئے تو پرندے اڑان بھول گئے. ویلکم بیک. جی، خبر ہے کہ اداکارہ میرا نے دبئی سے واپسی پر دوبارہ فنڈ ریزنگ کا اعلان کر دیا. Of course, Afia, I go to the UAE and the UK. یہ میرا کی بات ہو رہی ہے، اداکارہ میرا. کیا بات ہے، آج انگوٹھی دوسری انگلی میں پہنی. تم اتنا مائنیوٹلی آبزرو کرتے ہو مجھے. میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا. یہ تمہارے ساتھ کون بیٹھا؟ ایکچولی یہ میرا نانا ابو ہے. پٹھے جی ڈگ پیسی تو خراب ہو گیا. کیا خراب ہو گیا؟ پٹھا. You know, Afid, I'm coming from the UK and the UAE. UAE میں پچھلے دنوں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہو گیا. زرداری صاحب دی کوئی نئی چیز نکل آئی. اوہو، برج الخلیفہ چوری ہو گیا بے. وہاں پر ایک انڈین الیکٹریشین 5ویں منزل سے گرا اور بچ گیا، زخمی ہوا، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں گرلز ہاسٹل جو اسٹوڈنٹس تھیں وہاں تانگ جھانک کر رہا تھا. ایسی فضول حرکتیں کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے.
क्यों नानू? ਓਏ ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਾਮਾ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ चला गए। नानू असल में ना फ्रूट भी बेचते हैं। एक दफा ना नानू को प्लास्टिक का कुत्ता पड़ गया था। वो क्या होता है? वो जो खिलौना नहीं होता, इन्हें चाबी दी थी, वो इन्हें पै गया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਂ। वाह 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 वाह। ये जदों दा डिगे मंगण लग पे। आप कहाँ के भाई? ਮੈਂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। कहाँ के? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਈ। और दुबई जाकर आपने अपना ये अशर कर लिया। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਸਟਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਗਿਆ। अच्छा, ये खवातीन है जिनका हॉस्टल था, क्यों जी? जी। और ये शुरते हैं जो इसे पकड़ के लाए। अच्छा, ये चारों खवातीन ने? अच्छा जी, आप क्या कहती हैं? खवातीन क्या कहती हैं? ये लड़की है ने? ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਵਾਸੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੇ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਡਿਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੇ ਮਾਸੂਮ ਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ। ये ओल्ड हॉस्टल सी कोई? अपने ईमान से बताइए, स्टूडेंट लग रही। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। मारा भी है? ਉਹ ਸਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਵੀ ਆ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ? तो जो तुम 5वीं मंजिल से गिरे, हाँ जी। वो स्विमिंग पूल में गिरे थे? ये असल च ना एक मोटे जे बंदे उत्ते डिगे और बांह टेक के नहीं टूटी, उन्हें फिर बाद जो इन्हें कुटिया भी सी। अभी तो हमारे प्रिंसिपल साहिबा के हाथ नहीं लगा, वरना वो तो तुझे मार मार के मुआ कर देती। वो आंटी जी की बड़ी कोशिश ही किया है उन्हें हाथ लग जाए। वो इन्हें दोवें तो भी बुढ़ी है। छोड़े इनकी बातों को और सुनाए। शिकार खत्म हो गया उन? एक इतवार रह गया, वन संडे, वन लास्ट संडे। तो ये तितर जो बाकी बचते हैं वो अपने घरों को वापस चले जाते हैं? वो वापस नहीं होते, ये तीतर यहीं का जानवर है, नेटिव है। बटेर वापस जाते। मेरे नाना भी तीतर खाते हैं। अच्छा। ये ऑफ सीजन शिकार करें तो फिर चीतर खाते हैं। बड़े बड़े शिकार कीते ने आफ्ताब साहब। क्या क्या मसला? ਅਸੀਂ ਮਾਰਖੋਰ ਬਟੇਰੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। क्या मारे? ਮਾਰਖੋਰ ਬਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ये मारखोर ਨੂੰ इटा मार मार के मारन दे। ਭਾਈ ਜਾਨ मदद करनी तो साडी करो, वेखो तो सही। वैसे तुम किसी मदद, किसी हमदर्दी के लायक नहीं हो। जो फजूल और घटिया हरकत तुम कर रहे थे। देखिए, हम लोग हैं स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते लिखते रहते हैं और ऐसे लोग हमें आके डिस्टर्ब करते हैं। और भाई जी कोई नहीं, ये पढ़दियां, यकीन करो, सारा सारा दिन अपने कमरे च नचदियां टपदियां रहंदियां। तुम्हें कैसे पता है? लेकिन सर मेरा भी एक सवाल है, इन औरतों ने आगे पर्दा क्यों नहीं किया? सर ये तो फिल्म स्टार जीवन की तरह बोल रहा है। हाँ जी, जीवन इस तरह बोलता है। लेकिन सर सवाल तो फिर भी मेरा वही है कि ये पर्दा आगे क्यों नहीं रखती थी? ਵੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲਿਆ। अपने ईमान से बताइए, ये स्टूडेंट्स वाली लैंग्वेज है। ये लगता फ्लैट च सब्जी भेज दिया ने। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ये बुजुर्ग चिड़िया ने। मेरा एक और सवाल है, हाँ जी, हाँ जी। अगर इन्होंने नाच गाना ही करना था तो फिर तो पर्दा कर देती। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कुड़ियां चिड़ियां कट्ठियां हो ना, कुड़ियां बतखा नहीं। कुड़ियां चिड़ियां बगले बांदर। थोड़े दंद निकलन डे, मैनू कुट पैन डई है। आप वैसे कौन सी क्लास में? मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। उस हिसाब ना नाना अब्बू भी फर्स्ट ईयर सी ने। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋ। ਜੀ ਨਾਨਾ ਅਬੂ। नाना अब्बू बड़े मनूस आदमी ने, इन्हां दी बीवी भी इन्हां नूं नाना अब्बू कहदी। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। किसकी वजह से? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। क्यों गल? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਾਹਰ ਤਾਂਕਾ ਜਾਂਕੀ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਜੇ। तो तुम्हारी उम्र इसी पे होती है और शहर में कोई नहीं होता क्या? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਲੱਗਦਾ ਬੱਕਰਾ ਘਰਾਰੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। बात सुनो, तुम इंडिया से आए हो? हाँ जी, महेश भट्ट तुम्हारा वाकिफ है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। उनको मेरा हेलो है बोलना। उन पूछिए आजकल फिल्में बना रहे हैं या वही काम थे लगा है? ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛਿੱਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ने। उन्हें नाना भी तो भी बड़ा जुल्म की था। महेश भट्ट मुझे भी बहुत पसंद है, स्पेशली उसकी जो जख्म फिल्म थी वो मुझे बहुत पसंद है। यार बात सुनो, तुमसे किसी ने पूछा? कमेंट दो अपने। इस सूरत हाल पर हमारे यहाँ एक कहावत है। चलो। इन्हें जापानी भी बनाते हैं, फिर कहावत कहनी। ਵੇ ਸੁਣਾ ਵੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। कमरे खराब शी नजर तरजरा गरगरे कोल पकार दी। वो अपनी प्रॉब्लम दस रहे हैं। वैसे मुझे लगता है शुरता नहीं, हकीम है कोई। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੂ? बताओ भाई। गला खराब हो जाए तो गरारे करने चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस बकवास का क्या ताल्लुक है सिचुएशन के साथ। जीवन ने को फकी फुकी को आओ। क्यों लड़के पे इल्जाम लगा रही हो खाला? ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਨੀ ਇਹਨੂੰ। ਐਵੇਂ
ये ब्लैक बेल्ट तो ज्यादा बीमार बेल्ट लग रही। मेरी बाजी को भी कराटे आती है। ये कराटे मैनू भी आते ने। नाना अबू कराटे नहीं मारते, खराटे मारते। आफी मैं कसम उठा सकती हूँ ये दोनों स्टूडेंट नहीं है। तो यार ये तो स्टूडेंट लगती है जो सेंटर में बैठी है, चलो ये ना होगी। असल में बाजी 3-4 बार फेल हो चुकी है। 300-400 बार। अच्छा, मैं इस पर बहुत हैरान हूं कि 5वीं मंजिल पर पहुंच के ये गिरा कैसे? असल च ना 5वीं मंजिल ते जाके ना इन्हें उन्होंने गौर ना वेख्या। अच्छा, इनके तो कुड़ियां है नहीं, ये खुसरे ने। उस बेचारे ने बचाओ चाल मारी सी। अच्छा, आज सुनाएं आजकल डाइट प्लान क्या चल रहा है? डाइट प्लान ये चल रहा है कि जंक नहीं खाना, मीठा कम से कम खाना है, लेकिन खाना जरूर। अभी सैलेड के बारे में बताएं। सैलेड बहुत लाजवाब चीज। रशियन सैलेड भी तो गुड। रशियन सैलेड इज टू क्रीमी। तो आप क्रीम नहीं खाते? तो फिर डाइट का क्या फायदा अगर तुमने क्रीम खानी है तो? नाना वो बात क्रीम खाते हैं, ये तो मुंह तो लाने वाली भी खा जाते हैं। तो आपका फेवरेट जूस कौन सा है? मिंट मार्गरीटा है? मिंट मार्गरीटा। नाना वो मिंट मार्गरीटा पीते हैं, 1 मिनट में पी के दौड़ लगा देते हैं। जूस वाला पीछे हो गाना काटता। अफी चिलगोजा कितना महंगा हो गया है। बड़ी दफा बता चुका हूं मैं। यकीन करे एक दफा और बता दें। नहीं। पाइया चिलगोजे ले आते नाना अब्बू नु गिरवी रख के। 6 साल हो गए नानू उधर जॉब कर रहे हैं। क्यों? पैसे पूरे कर रहे हैं। 1 पाव चिलगोजा। हाँ जी, और अजी दुकानदार कहते 20 साल लगेंगे। और उन्हीं देर च हो सकता है चिलगोजा और महंगा हो जाए। नानू नु ना उन्होंने परमानेंट रख लिया। अच्छा, जेड़ा उत्थे उधार मंगण आंदा ना नानू उन्हें डराउंदे ने। नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।